ये दो चीज़ों का डिफरेंस है, मतलब डिग्रियों के सिर्फ नाम का फ़र्क नहीं है, इनके डोमेन्स का भी फ़र्क है दोनों फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की डिग्री, दोनों यूएस की डिग्रीज हैं. How much time and effort one has to put in preparing? In terms of time duration, CFA will take 3 years, CPA will take about a year and a half, even if you're a working professional. Can we say that both qualifications, CPA and CFA, are globally recognized? Yes, they are. Okay, and how much salary difference one can expect? Forget about pay scale differences. That's not a reason why you should do a course or not do a course. Do it because your heart lies in it, because you are interested in it. Are you navigating the crossroads for a career in finance or accounting? Wondering whether to pursue the CFA or CPA? You are in the right place. Both CFA and CPA are globally recognized and respected designations, but they cater to different career goals and professional aspirations. So, what set these two certifications apart, and how do you determine which one aligns best with your career ambitions? Welcome viewers, you are watching Edumont Mythbuster Podcast Season 6. I am your host Mohit, and along with me is Rohan sir, our Chief CPA and CMA mentor at Edumont, and we are breaking myths on CFA versus CPA. So welcome Rohan, welcome to the podcast. Hey, thanks for having me here. Yeah. So Rohan, this is a very hot topic in the market. When people generally search about CPA, they also came across CFA also. So the very first question for you is, I want you to give the understanding what is CPA and what is CFA, and what they signify in their respective field. Oh, that's good actually. That's a good question. What is CPA? What is CFA? CPA is a certified public accountant. It's an accounting and auditing, a tax-based qualification. Whereas CFA, Chartered Financial Analyst, is a more financial analyst wala kaam. So it's more about valuing a stock or finding out how a derivative gets valued in a market when it's being traded, or how certain options or hedges might work out. That's the sort of thing that you're primarily going to be concerned with as a CFA. तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस है, मतलब डिग्रियों के सिर्फ नाम का फ़र्क नहीं है, इनके डोमेन्स का भी फ़र्क है दोनों फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की डिग्री, दोनों यूएस की डिग्रीज हैं. But at the same time, CFA is more focused on the trading aspect of things. So stock हो जाए या debt security हो जाए या derivative instrument हो जाए, तो CFA is more interested in finding about its value, its functioning. Whereas when you talk about CPA, CPA is very it's broader in the sense कि यार जैसे इंडिया में CA होती है ना, it's much broader. It does talk about all of this, but also talks about accounting, auditing, and tax in much more detail. Okay. That's the idea. Okay. So when it comes to the prerequisites, so like what are the educational prerequisite when you look forward for CPA and CFA? So the first things first is, if you're looking for CPA, you need to have 120 credits, which means you need at least a graduation plus something on top of it, at least 1 year on top of it. So the barrier to entry is a bit high. A lot of people don't have, after their graduation, they only have 90 credits. They don't have 120. So what they do is they take up certain bridge courses in which they enroll, and then they, meet the eligibility. Whereas CFA के अंदर ये होता है कि you just need to be a graduate. You just need to be a graduate. Or if you're not a graduate, you are pursuing graduation, तो भी चल जाता. So CFA में barrier to entry is low. Barrier to entry. That is the idea. So in terms of academic qualifications, what's needed? CPA has a higher barrier to entry, no doubt. और CPA में अगेन अभी आगे तो लाइसेंस की भी बारी है. जब आप CPA का लाइसेंस लेते हैं तो उस केस में आपको 150 क्रेडिट्स चाहिए. तो CPA में एजुकेशन जो क्रेडिट्स हैं, यानी कि जो आप अपनी मान लो ग्रेजुएशन करते हो जैसे फॉर एग्जांपल, तो ग्रेजुएशन का एवरी ईयर गिव्स यू सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स. सो योर ग्रेजुएशन इज 3 years, लेट्स से गिव्स यू 30 क्रेडिट्स ऑन एवरेज, तो 90 क्रेडिट्स फॉर ग्रेजुएशन. उसके ऊपर MBA कर ली 2 years की, तो 150 हो गए आपके टोटल. तो द आइडिया इज के क्रेडिट्स जो हैं एजुकेशन के, उस पर ज़्यादा फोकस करता है CPA. बट एट द सेम टाइम बोथ दीज क्वालिफिकेशंस नीड अ मिनिमम एजुकेशन, बट ऑल्सो नीड अ मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट. सो लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट दैट. तो वर्क एक्सपीरियंस में CFA के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 years or 4,000 plus working hours at a specific type of job. So it has to be only specifically related to the CFA job role. Essentially. तो उसमें उनके कुछ specific parameters भी हैं. We can talk about that in more detail if necessary for any viewer or a student.
But at the same time, when you talk about CPA, it's a bit more wide in the sense that they just need 1 year of work experience and it should be from the FNA domain. But any kind of work experience goes. Even for example, training or teaching experience in accounting is acceptable for your license. करेक्ट So ये एक थोड़ा सा और की डिफरेंस है. ओपन हाउस मिल जाता आपको वहाँ पे थोड़ा Basically CPA में घुसना थोड़ा सा मुश्किल है, पर निकलना on the other end is much easier. ओके सो CFA जस्ट टू is सिंप्लीफाई the other कि way around. सीपीए में आने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन तो आपकी कंप्लीट होनी ही चाहिए बट फॉर सीएफए इवन इफ यू आर परसुइंग ग्रेजुएशन यू जाएगा. कैन एक्चुअली स्टार्ट विद द प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जाम Absolutely. ग्रेट एंड व्हाट इज द एग्जामिनेशन और आई वुड रेदर से एग्जाम पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है Okay. वो How कैसे is that डिफरेंट है एंड उसी के साथ एक चीज That's जो हम actually a very जो valid question. हाँ उसी के साथ जो एक चीज कवर करना चाह रहे हैं वो ये है कि यू नो एफर्ट कितना लगता है दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन में सीपीए एंड सीएफए Right. Makes sense. वो कैसे रहेगा Makes sense. तो एक तो एग्जाम का स्ट्रक्चर और दूसरा एफर्ट, ये दो चीजों का Correct. जवाब देता हूँ. सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न में अगर डिफरेंस देखें तो सीएफए में यार देयर आर 3 लेवल्स ऑफ एग्जाम्स. So there are 3 exams वैसे, but they're spread across 3 years. So you can only give 1 level per year basically. CPA there are 4 exams. Sorry, at this moment everything is 3 apparently, but there are 4 exams. Okay. But with that being said, you can give all 4 of them within a span of 1.5 years if you so choose, even less. ओके So in terms of time duration, CFA will take 3 years, CPA will take about 1.5 years, even if you're a working professional Working professional. who's fully employed and only studying part-time on the side. To be. Whereas CFA will require significantly more effort. In terms of differences in pattern, I can tell you one more thing. Both these exams are 100% objective. तो इनमें सब्जेक्टिविटी का स्कोप नहीं रहता, 100% ऑब्जेक्टिव है. बोथ आर अमेरिकन क्वालिफिकेशंस. बोथ केयर मोर अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देन दे केयर अबाउट मेमोरी. ये दोनों में ये चीज़ें कॉमन है. बट की डिफरेंसेस बोले तो यही है कि बेसिकली उसमें 3 एग्जाम है, हर एग्जाम एक लेवल पे, और हर एग्जाम में करिकुलम काफ़ी है क्योंकि वो साल में एक बार कर रहे हैं तो वो करिकुलम बहुत है. एक एग्जाम में 10-10 सब्जेक्ट है. But when you talk about CPA, there are 4 subjects and 4 exams, period. So number of subjects are very less in comparison. Despite the number of subjects being less, it's able to give you an overview of virtually everything that you need to know in the finance and accounting domain. That's the idea. So CPA और CMA में, CFA में ये difference है. I said CMA. I meant CFA. एंड जस्ट टू ऐड उसमें दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोनों में नेगेटिव दोनों में मार्किंग negative नहीं होती. marking That's another good point. ओके सो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट वन हैज टू पुट इन प्रिपेयरिंग हाँ यार, टाइम एंड एफर्ट का अगर बात करें तो दैट इज द डिफरेंस. लाइक आई टोल्ड यू कि 1.5 years इज व्हाट यू नीड फॉर योर CPA. इवन इफ यू आर गोइंग स्लो, करने वाले भी साल भर में भी करते हैं अलॉन्ग विद अ फुल टाइम जॉब. करने वाले विदाउट अ फुल टाइम जॉब 6 महीने में भी करते हैं. बट इफ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन यू विल गोना टेक अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम. तो 18 महीने मान लो यार हो जाएगी. लेकिन ओके whereas if you talk about CFA, that's gonna take significantly longer. It's gonna take about 3 years. ओके And then you'll need 2 more years of work experience on top of it. So consider yourself taking 5 years to get your license, to get your charter membership. And you would only need roughly 2.5 years. 1.5 साल मान लो आप पढ़ाई में लगाओगे, 18 महीने plus 1 साल का work experience. So you only need 2.5 years to actually get your full CPA. Again, I don't know why I keep saying CMA, sorry. CPA, certificate and membership. ओके तो ये डिफरेंस है यार. टाइम इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. CFA will take longer. It'll take about 5 years. If you think about the fact कि मिनिमम इज लाइक 3 मतलब 3 में कर लो तो अच्छी बात है 3 साल में आप अपने पेपर क्लियर करोगे. हाँ वही, अगर वर्क एक्सपीरियंस पहले का है, इसी डोमेन का है स्पेसिफिक, तो ओवरलैप हो जाएगा. अदरवाइज प्लस कर दो अगर, तो फिर 5 लग जाएंगे ना फ्रेशर को. करेक्ट इसी तरह CPA में भी फ्रेशर को जिसका एक्सपीरियंस नहीं है उसको लग जाएंगे 2.5, वरना तो वही 1.5 लगेंगे. तो 3 और 1.5 ये फर्क रहेगा. 50% टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस रहेगा. ग्रेट एंड रोहन is like can we say that both qualifications CPA and CFA are globally recognized? Yes, they are. ये तो आपकी इंट्रोडक्शन में आपने खुद ही बोला है that they are globally recognized. Just for the clarity. No, I get it, and they're recognized in 120 plus countries. But again, हमने उसका क्या करना है? हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जिन कंट्रीज में हमने प्रॉब्ली पॉसिबली फ्यूचर में काम करना है, उन दोनों कंट्रीज में, या उन सारी कंट्रीज में ये दोनों क्वालिफिकेशन फुली रिकॉग्नाइज्ड है. Where would you want to travel or move abroad to? Usual suspects वही है ना, US, Canada, UK, UAE, Australia, New Zealand.
हाथ मार के कोई बोलेगा भाई मैं जर्मनी जा रहा हूँ, मैं फ्रांस जा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो जाएगा यूरोप में, तो इन सब जगह ये दोनों डिग्रियां चलती हैं, बिल्कुल वैलिड है. दैट्स द पॉइंट. ग्लोबल रेगुलेशन है, बट देयर इज वन थिंग दैट आई प्रॉब्ली शुड ऐड हियर एंड लेट यू ऑल नो. अगेन वी डिस्कस्ड दिस बिफोर, इट्स नॉट न्यूज बट जस्ट टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट. यार यूएस में, कनाडा में स्पेशली, मतलब वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अभी शॉर्टेज चल रही है क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स की, जिसमें सीपीएस क्वालिफाई करते हैं उस रोल में, सीएफएस नहीं करते हैं. ओके. एनालिस्ट्स की शॉर्टेज नहीं है, अकाउंटेंट्स की शॉर्टेज है. ओके. सो इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम अ डिमांड परस्पेक्टिव एक्चुअली कि दोनों में कोई इंटरनेशनल मार्केट में कोई फर्क है, हाँ है एक्चुअली. इफ यू आर अ सीपीए यू आर मोर लाइकली टू फाइंड high paying opportunities right Because now of the shortage. in today's climate, because of the shortage, then you are going to be as a CFA. That is the idea. Okay, and how much salary difference one can expect कि मैं अगर CFA बहुत कर रहा हूँ बढ़िया और मैं सवाल. CPA कर रहा हूँ? बहुत बढ़िया सवाल. Salary difference. Now there is a myth and this is so nice that this is the mythbuster part. Right. This is so true to the nature of what we're doing. This is a myth in the market कि CPA करके या CFA करके पे पैकेजेस में डिफरेंस होता है. नहीं होता बस. That's absolute rubbish. Everybody gets paid on a pay scale. Okay, every company follows a pay scale. In that pay scale, if you're a CPA or a CFA or a ACCA or a CMA to a certain extent, or you're a FRM, Okay. doesn't matter, yaar. Or you're a CA, doesn't matter. Okay. You get paid as per the qualified payroll. तो क्वालिफाइड हो तो क्वालिफाइड के हिसाब से चलेगा. अगर सिर्फ ग्रेजुएट हो तो नॉट क्वालिफाइड माने जाओगे. और अगर बीच में कहीं हो, सीए का सिर्फ इंटर हो रखा है, सीपीए के सिर्फ 2 पेपर हो रखे हैं, या 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा कर रखा है सिर्फ ग्रेजुएशन के ऊपर, तो यू आर बेटर देन अ ग्रेजुएट, यू आर सेमी क्वालिफाइड, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट द फुल बेनिफिट. वो फुली क्वालिफाइड वाला जो पेरोल है वो थर्ड पेरोल होता है. सो दैट इज गोइंग टू पे यू एट द सेम स्केल. सो देयर इफ यू आर अ फ्रेशर, एज अ fully qualified individual, a fresher get 10 to 12 lakhs. So that's the idea. My point is 10 to 12 lakhs is what it is. As a fresher qualified individual. ये हर जगह चलता है. तो please, for anybody who's watching this podcast and trying to derive value out of it, I want to tell you something. Forget about pay scale differences. That's not a reason why you should do a course or not do a course. Do it because your heart lies in it, because you are interested in it. That is the point. And if you are interested in it, you will rise faster than your peers, क्योंकि आप अपने काम में अच्छे होगे. Just to add a little more clarity, एक बारी if you can just brief qualified, not qualified, एक बारी इनकी definition clear कर देते हैं, क्योंकि वो down the line मेरे question में help करेगा. If you're just a graduate, that's not qualified. Not qualified. So non-qualified नहीं, non-qualified. Non-qualified हो जाएगा. तो ये bare minimum होती है ग्रेजुएशन. ये तो एंट्री पॉइंट है ही है हर बड़ी कंपनी में. पर अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो नॉन क्वालिफाइड हो. अगर आपने इसके ऊपर कुछ 1 ईयर का कोर्स कर लिया है, या आपकी सीए हाफ क्वालिफाई हो गई, इंटर हो गया, या सीएमए हाफ क्वालिफाई हो गई, या सीपीए या एसीसीए हाफ क्वालिफाई हो गई, तो यू बिकम सेमी क्वालिफाइड. And then if you're somebody who's fully professionally qualified, you're a charter member, you're a designated member, you're a holder of a certification, be it a CPA, ACCA, whatever, then you're fully qualified. And fully qualified means you hold the license also. It is not just कि 4 पेपर क्लियर कर लिए तो मैं fully qualify हो गया. नहीं. It is also that कि you hold a license. Great. You have to be a license holder. That's the point. Charter holder or license holder. CFA है तो charter holder. CPA है तो license holder. CPA का license होता, license holder. ऐसे रहता. Great. And then okay, so salary wise we got a clarity ki what one can expect as a non-qualified, qualified, semi-qualified. Okay, then from your personal experience, would you like to share some case where you have identified people who have done CFA and CPA both, or some कोई और भी qualification, like किसी ने triple comma ले रखा है, BCom, like CA भी है, CFA भी है. It's very nice that you're asking me this question. This is taking me back a few lifetimes ago probably, I would say. जब मैं कनाडा में था तो वहाँ पे I hope I'm getting his name right. It was Nanook Warman. That was his name, Nanook Warman. He was the CEO of the client that we were working for. पॉपको रिपोर्टिंग के साथ मैं काम कर रहा था और ये उनके CEO थे. और ऑफ कोर्स डुअली क्वालिफाइड थे, सीपीए और सीएफए थे. बट बाय चांस की बात है कि जो मैं काम जिस प्रोसेस में कर रहा था उनमें मेरा इनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन था, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा था. तो वी सॉर्ट ऑफ गॉट टू टॉकिंग अ लॉट ऑन अ पर्सनल साइड एज वेल, एंड आई वुड सीक एडवाइस फ्रॉम हिम ऑन थिंग्स.
COO जो कंपनी के थे, he was also a CPA, and जो CFO थे, he was a CPA CMA, just like I am. I wasn't back then, but now I am. तो वो भी बहुत क्वालिफाइड थे, सब लोग ठीक है, सब बढ़िया है. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज ननोक वॉज द स्मार्टेस्ट ऑफ द थ्री. दैट्स वाई ही वॉज CEO, एंड probably that is why he chose. मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि it is CPA and CFA together that made him so smart. I think he was a smart individual, which is why he chose these two qualifications, because it actually gives you a very good view, a detailed understanding of the entire markets and financial structures around you. समझ में आने लगती है सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं, आपको हर तरीके की चीज़ समझ में आती है. एंड दैट यूज टू बी ट्रू विद ननोक. ही यूज टू बी अ पर्सन जिसके पास अगर मैं जाके पूछता था ये ऐसे कैसे होगा, ये क्या होगा, ही वुड हैव द बेस्ट आंसर टू गिव इन द एंटायर ऑफिस. और बड़े होशियार लोग थे, कई जगहों से, कई कंट्रीज से, जापान से, रशिया से, US से, कनाडा से, इंडिया से, कई लोग थे वहाँ पे. But he was a native Canadian, but he was just the smartest person there. Great. Because he had both these qualifications. बहुत अच्छी So which simply says कि this duo is like a killer combination. If you have the duo qualification. If you have actually, और पता है US में यही होता है. I'll tell you something. US में लोग, even in Nanook's case, and वहाँ और भी लोग थे. For example, Sushi was a person from Japan. Mohit, you will not believe if I tell you. Column होता है ना जिसमें सारा ऐसे डेटा रहता है, नंबर्स रहते हैं, उसको टोटल करने में आप क्या करते हो, Alt+ दबा के एंटर दबाते हो. जितनी देर में आप Alt+ एंटर करोगे ना, सुशी वो बंदा था, वो उसका टोटल दिमाग से बता देगा. Oh. He had that kind of level of intellect. He was genius. था क्या, अभी भी है, I'm sure he's still. So he was in my opinion smartest person I know. Right? So Sushi was also CPA. And then pursuing CFA on top of it. Okay. So why do these guys in general US में क्या होता है, जो highly qualified professionals होते हैं इनके, ये लोग पहले CPA करते हैं, जैसे इंडिया में लोग CA करते हैं. This is the base building thing that you do. Then you choose a specialization. CFA ले लो, वो specialization की तरह लेते हैं लोग, CPA plus CFA, या फिर CMA ले लो, या CISA होता है, Certified Information Systems Auditor, CISA की डिग्री ले लो. लोग ये ना सेकेंडरी क्वालिफिकेशन है. टैक्स में इंटरेस्टेड तो टैक्स प्लानिंग की सर्टिफिकेशन होती है, सर्टिफाइड टैक्स प्लानर, वो ले लेते हैं ये लोग. तो ये लोग क्या करते हैं, पहले बेस बिल्ड करते हैं, उसके ऊपर फिर ये कुछ स्पेशलाइजेशन लेते हैं. Okay. तो फिर ये किलर कॉम्बिनेशन बनता, एक्चुअली बनता. Okay. So okay, if we see that this is a killer combination, ये क्लैरिटी मिल गई. अब सबसे बड़ा फिर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन भी होगा. Okay. बट फिर वही क्वेश्चन आगे खड़ा हो जाता है कि पहले क्या किया जाए, CPA किया जाए या CFA किया जाए. बिकॉज एक में तो मेरे को एंट्री भी तो जल्दी मिल रही है ना, CFA में मेरे को ग्रेजुएशन अगर मैं परस्यू कर रहा हूँ तो आई कैन टेक अ एंट्री, आई कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. राइट, CPA के लिए मेरे को ग्रेजुएशन तक वेट करना पड़ेगा. तो अभी पहले कौन सी की जाए? सो क्या होता है कि I'll take the example of Atsushi this time instead of Nanook. I'll take the example of Atsushi. Atsushi is an immigrant in Canada, just like I was. अपना देश छोड़ के आए हुए थे, तो खुद ही करना होता सब कुछ. जापान से थोड़ी उसके माँ बाप उसको पैसे भेजेंगे, सब करना खुद करना. तो क्या होता है यार, CPA के अंदर क्या है, इफ यू हैव द एबिलिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट्स तो अच्छा, अगर नहीं है तो ब्रिज कोर्स लेके बन जाओगे, ग्रेजुएशन के साथ साथ हो जाओगे. क्या करते हैं इंडिया में भी लोग, क्या करते हैं कनाडा में भी लोग, क्या करते हैं US में भी लोग, क्या करते हैं CPA पहले क्यों करते हैं ग्रेजुएशन के बाद. उसका लॉजिक ये है, गेटिंग इट डन इज अ लॉट ईजियर एंड अ लॉट फास्टर. ओके CFA आई एम नॉट सेइंग कि वैसे बहुत डिफिकल्ट है कुछ है, बट इट विल टेक 3 years. सो 3 years एज अ इमिग्रेंट विद नॉट इनफ मनी एक्सेट्रा, इट्स हार्ड टू लिव ना. तो व्हाई डिड Atsushi also choose to do his CPA first? क्योंकि 1.5 साल से पहले में निकल जाएगी, और निकलते ही मुझे मेरी पे पैकेज इंक्रीज मिलेगी. तो इफ यू आर समबडी इन इंडिया राइट नाउ एंड यू ड्राइंग अ पैरेलल एंड फिगरिंग आउट पहले कौन सी करें, एंड यू फील देयर इज अ बजटरी कंस्ट्रेंट एंड अ टाइम कंस्ट्रेंट ऑन यू, तो यार अपने हालात सुधारने के लिए जो जल्दी का तरीका है वो थोड़ा CPA ही बनेगा, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन कम है, और वो करके आप इसी डोमेन में एंटर कर सकते हो जिसमें CFA काम करते हैं. ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर लो और फिर अपनी उसके ऊपर CFA करो. वंस यू हैव द पैकेज दैट यू नीड, यू डिजर्व, देन स्पॉन्सर योरसेल्फ फॉर अ CFA विद टाइम and you will find you are better qualified than everybody else on the floor. क्योंकि CPA plus CFA combination is killer. मतलब बेस्ट है यार, इससे ऊपर का नहीं बन सकता कॉम्बिनेशन इन दैट स्पेसिफिक डोमेन. ओके, विच इज CFA की जो डोमेन है, विच इज फाइनेंशियल वैल्यूएशंस. अरे भाई, जिसको अकाउंटिंग और वैल्यूएशन दोनों आ रही है, उससे ऊपर का तो बंदा ही नहीं है ना यार. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं
कि अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो और आप नौकरी ढूंढने निकले हो, आप बिल्कुल अभी आपके लिए जो वो कहते हैं ना सर्वाइवल वाली स्टेज है कि आई नीड टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर एंड बट आई नीड टू हैव इट इन प्रॉपर वे. But again, तो- even if it's तो not go that, for CPA. even if it's not that, even if you're well off, wouldn't it be better if you started your career, got some hand-on experience? CFA में भी 2 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए ना. स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज कोई निकल के अगर सीधा ही CFA करने निकल रहा है तो फुली चार्टर मेंबर तो बन ही नहीं सकता जब तक 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं आएगा. तो 3 ये फिर 2 और 5 साल तो उसको लगेंगे, रुकना पड़ेगा ना. अगर आप यही काम 1.5 साल में या उससे कम में करना चाह रहे हो और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हो, करियर स्टार्ट करना चाह रहे हो, वो भी अच्छे स्केल पे, तो देन CPA इज द राइट पार्ट. तो मैं इसको ऐसे समझू, चलो दिस इज फॉर अ फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स से समबडी हु इज इन द डोमेन, लेट्स से जो कोई वर्किंग है, 4-5 साल एक्सपीरियंस है, 7 ईयर एक्सपीरियंस है, नाउ ही इज कमिंग, ही इज अ ग्रेजुएट, ही इज अ मास्टर्स और PG भी उसने कर रखा है, BCom MCom BCom MBA ऐसी कॉम्बिनेशन में है, या BCom plus CA somebody's है. experience ना मोहित, उनका यूजुअल आइडिया ये होता है कि मेरे को इस डोमेन में रहना है और इस डोमेन में ग्रो करना है. तो दे आर लुकिंग फॉर अ प्रमोशन, अ मूवमेंट. CPA again will be able to achieve that for you a lot quickly as opposed to CFA. CFA का अगर लेवल 1 1 साल में क्लियर कर भी लोगे पहले साल में, तो कंपनी इस बात पे आपको प्रमोट नहीं कर देगी कि लेवल 1 हो गया आपका, मुबारक हो. ओके, ठीक है ना. या तो क्वालिफाई करो, यार अगर क्वालिफाइड नहीं हो तो बात खत्म. फिर उस केस में आपको CPA जो है वो जल्दी आपको ग्रोथ दे देगी. फर्क सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका एक्चुअली क्वालिफिकेशन हो रखा है अकाउंटिंग का, जो CA CPA ACCA कर चुके हैं. वो लोग अब अगर चाहें तो सीधा CFA पे जाएं और उनके लिए वो किलर कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर वो इस डोमेन में इंटरेस्टेड है तो. अगर वो इसमें काम करना चाहते हैं तो, अगर वो ऑडिटिंग में, प्लानिंग एंड एनालिसिस में, टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, तो फिर उनको CFA की क्या जरूरत है, फिर ना करें. बट इफ यू आर समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन दिस डोमेन ओनली, right, okay, that you're interested in business valuations, you're interested in not just business valuations, rather you are interested in business valuation is covered very well in CPA as well. तो मैं सिर्फ उस टॉपिक की बात करूंगा जो अलग है CFA में. तो वहां पर बात आती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, ये स्पेशल है. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ज़्यादा डिटेल में है, हालांकि हम भी बात करते हैं CPA में, बट ये ज़्यादा डिटेल में है. एंड perhaps you would also have an understanding of how to value options, derivatives, equity, but अकाउंटिंग आपका CFA में भी छूटेगा नहीं. जस्ट टू बी वेरी क्लियर, इवन इन CFA लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक यू विल फाइंड सम अमाउंट ऑफ अकाउंटिंग इन एवरी लेवल रिक्वायर्ड, और ये अकाउंटिंग US गैप के हिसाब से. तो CPA जो है उसमें जो सब्जेक्ट है फार का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, उसी का तो सब सामान है, ये वहीं से तो उठाया ये. गॉट इट. सी माय पॉइंट, वहीं का सामान है, वही सामान है ये. तो CFA में भी वो कवर्ड ही है, बट CFA में कुछ चीज़ें जो अलग हैं, अगर उसमें आपका स्पेशल इंटरेस्ट है, डोमेन वाइज अगर मैं बात करूं, तो आपको एनालिस्ट बनना है, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही डोमेन बनाना है अपना, वहीं पे करियर बनाना. और उसमें भी यू नॉट वांटिंग टू इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यू डोंट वांट टू बी ऑन द अकाउंटिंग साइड, यू ओनली वांट टू बी इन द वैल्यूएशन साइड, then perhaps, or the management side, then perhaps CFA is a very valuable add-on that you should have in your बट उस केस में भी एक एटलीस्ट डिग्री तो हो हमारे पास, एक डेजिग्नेटेड अगेन लेवल यार, डिग्री. मतलब वही कोई CFA कर रहा है बट उसके पीछे उसका अकाउंटिंग का बेस नहीं है, तो कर कैसे रहा है, उसको मुश्किल तो बहुत पड़ेगी ना. उसको मुश्किल तो पड़ेगी ना उसको. फिर इसीलिए लोग इतना कहते हैं कि CFA बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेसिक चीज़ें समझना पड़ेगा ना. पहले बेस तो बिल्ड करो. CA करके कोई CFA करता हो बोलता मुश्किल है, CPA करके कोई CFA करता बोलता मुश्किल है, नहीं बोलता ना. यही बात है ना. Okay, great. And I think viewers, you must have got a clarity, or I would say a wider clarity, कि CFA भी US क्वालिफिकेशन है, एक डेजिग्नेटेड डिग्री है, एंड इसकी भी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, बट इट इज नॉट लाइक कंपीटिंग विद CPA. CPA इज फ्यूलिंग CFA, आई वुड रेदर से. अगर आपको अच्छा पैकेज जाना है, उसी डोमेन में जाना है, तो CPA उसको फ्यूल कर रहा है. इन एवरीबॉडीज लाइफ क्या होता है, इफ यू आर समबडी हु इज क्वालिफाइड एज अ CPA, एज अ यंग पर्सन, आई विल गिव यू माय एग्जांपल. Straight out of college I went to EY. I was just a graduate then, but within a year or so I was already qualified as a CPA. मैंने देर नहीं लगाई, 1.5 में मेरा सब कुछ I had already qualified, and it once I started giving papers I literally cleared all my papers in 6 months. Okay, so नहीं 7 months, not 6, 7 months. But with that being said, just to be very frank and honest, क्या होता है, ऐसा बंदा, मेरे जैसा बंदा कॉर्पोरेट की लाइन में अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो 5-7 साल बाद स्टेल होने लगता है. मैनेजर बन जाते हो, सीनियर मैनेजर बनते हो, सैचुरेशन आ जाता है. सैचुरेशन आती है.
फिर ना अपस्किल करना पड़ता है. So if you're somebody who is, in that state, you already have a strong accounting background, and you're already working in investment banking or looking to work in investment banking, that's your goal, then I think CFA is a good choice for you. But if you're somebody who's lacking that itself, CPA is a very good choice. Is the only logical choice. In fact, well, I know it can sound partial on my end, but I'm just being very frank here. It's the only logical choice. नहीं, but we are not saying that CFA मत करो. We are do it at the right time, at the right spot, where Yes. you can have the maximum ROI from the qualification. Yes. It is not graduation के बाद किसी तरह धक्के खा के कर ली, 4 साल 5 साल लगा लिए, और इतने में CPA वाला आपसे 10 कदम आगे निकल गया. हाँ, और फिर होगा ये इन दी एंड, सीएफए करने के बावजूद भी 5-7 साल बाद आप भी स्टेल होंगे. आपको भी स्टैग्नेट होना ही पड़ेगा. फिर आप ढूंढोगे कोई और क्वालिफिकेशन ऑन टॉप. उस समय क्या टॉप अप करोगे? करेक्ट. तो उस समय सीपीए करने आओगे तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. चलेगा, पर करनी तो पड़ेगी. कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. आजकल जो जमाना है वो मल्टी क्वालिफिकेशन का जमाना है. So viewers, I believe you must have got a wider clarity now, even though, so you can choose between CFA and CPA more wisely now. And if you have any doubt, any question, you want a proper understanding on your doubts, you can simply visit our website, or you can put a, comment below in the section, and, we'll be able to answer them. Yes, and as always, thank you so much for watching. Please like, share, comment, subscribe to our channel. Let YouTube know that this is good content that you enjoy. Correct. If that is the case, of course. Zabardasti nahi hai. But please do. It really helps us out. And with that being said, please share in comments any ideas that you have that you want us to do a podcast on. We'll be happy to do a shoot on it Yeah. separately. Thank you for watching. Thank you. Bye.